Hello everyone. This video is about economic or financial affairs, and also there are topics which are related to general awareness which are discussed in this particular video. Basically all the events which took place in the month of November, we will be discussing all of them one by one. Now the students who are preparing for RBI grade B, SEBI grade A and UPSC, this video is basically very helpful for all of them. So we will be starting with the articles, but before that I would like to tell you that Ruhi ma'am is one of the recognized educators on Unacademy. There she handles all the comprehensive courses for SEBI grade A and RBI grade B examination. You can go for the subscription on Unacademy and do not forget to use the code SC10 for getting a discount of 10%. So you can enroll for it and get the subscription there. So these are the courses which are basically handled by Ruhi ma'am, like the RBI grade B, SEBI grade A paper 2, all the banking, financial or economic awareness, then current affairs for all bank exams, insurance awareness for all insurance exam. So you can go for the subscription and do not forget to use the code SC10. So whenever you want to access any free content on Unacademy, or whenever the Unacademy is asking you for the invite code, just use the code SC10 and you can access all the free content like the videos, PDFs and mock discounts as well. This is the Telegram channel which you can join for getting all the information regarding the courses. Now, we will be discussing the articles comprehensively. So, the very first article is Operation Green's top to total scheme. अब यहाँ पे हमें एक चीज़ डिस्कस करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट व्हाट इज टॉप. ओके, सो टॉप इज़ बेसिकली एक स्कीम बनाई गई थी जहाँ पर टमेटोज, अनियंस और पटेटोज़ को सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा. तो उसमें 3 जो कमोडिटीज़ हैं उनको इंक्लूड किया गया था. ठीक है, तो उसको टॉप बोला गया था. So that is tomatoes, onion and potato. Now it is being extended to other commodities as well. Okay, so this particular operation green scheme is top to total. So इसमें सब्सिडीज किस तरीके से दी जा रही थी. जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है कमोडिटीज़ का उस पर 50% ऑफ दिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू. अब वो ट्रांसपोर्टेशन आपका रेल के थ्रू हो रहा है, एयर ट्रैवल के थ्रू हो रहा है. ओके, जितने भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी कम है, जैसे कि हमारा असम हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न जो हिमालयन स्टेट्स हो गए, वहाँ से सारी सब्जियाँ जितने भी कमोडिटीज़ है उनको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए जो हमारा सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे, तो उसके लिए सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाएंगी अंडर दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन. तो इसको जो पहले टॉप के लिए सिर्फ 3 कमोडिटीज़ के लिए था, अब उसको टोटल में एक्सटेंड कर दिया है. ओके, सो अंडर दिस 41 नोटिफाइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव बीन कवर्ड. So what are the important takeaways? Airlines would provide the transport subsidy directly to the supplier by way of charging only 50% of the actual contracted freight charges and will claim the balance 50% from Ministry of Food Processing Industries. ठीक है, तो इसमें आपको ये बात समझ आ गई कि सब्सिडी दी जाएगी जो भी चीज़ें सप्लाई हो रही हैं उनके ऊपर, नॉट जस्ट टू द टॉप, ओके, द टमेटो, अनियन, पोटैटो, बट टोटल 41 other commodities have also been added. ठीक है, so the scheme was approved and the amended scheme guidelines were notified in November 2020. So basically the point is 50% subsidy would be given for the freight charges. Now where are the states which are basically eligible for this particular scheme? सो द एलिजिबल एयरपोर्ट्स आर, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस इज़ फॉर द एयर फेयर्स. ठीक है, आपके जो एयर ट्रैवल चार्जेस हैं, जो आपको ट्रांसपोर्ट करने के चार्जेस लगते हैं, उसी के लिए ये सब्सिडीज़ आपको अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम. ठीक है, सिक्किम से देयर इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रिलेट कर सकते हैं आप, दैट सिक्किम इट हैज़ बिकम द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट. ओके, कम्प्लीटली ऑर्गेनिक स्टेट जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा
प्रोमिनेंट तरीके से अपनाई जा रही है. ओके, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बेसिकली वेयर देर इज नो यूज ऑफ केमिकल्स. Okay, and Tripura from northeast and Himachal Pradesh, Uttarakhand and Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh among the hilly states. So basically ये वहीं पर applicable है, जैसे कि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जो हमारे अपर साइड, ठीक है, जो टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी कम है, फाइन, तो ये वो सारे स्टेट्स में अप्लाई की जाएगी. ओके. So, do you know that the transportation subsidy was earlier extended under Operation Green Scheme for Kisan Rail scheme in December? We have discussed that what is Kisan Rail. मैंने आपको बताया था कि किसान रेल गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाने वाली ऐसी रेल है जिसमें कि वेजिटेबल और फ्रूट्स को सप्लाई किया जाएगा मार्केट्स में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक. ठीक है, पहले वही चीज़. See, the first Kisan Rail was started between Maharashtra to Bihar. तो महाराष्ट्र से बिहार आपकी वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स है उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा. सो दिस इज द किसान रेल एंड द फर्स्ट was started between महाराष्ट्र एंड बिहार. सो द बेसिक पॉइंट इज दैट दिस इज गोइंग टू इम्प्रूव, कि अब ये सब्सिडीज क्यों प्रोवाइड की जा रही हैं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी बिटवीन द फार्मर्स, the customers and also the markets. Okay, so this is the basic idea behind all those schemes. Railways only charge 50% of freight charges on the notified fruits and vegetables. Okay, so Operation Green जो है उसमें जो टॉप टू टोटल जिसमें एक्सटेंड किया गया है वो एयर ट्रैवल के लिए है, वहाँ पे 50% चार्जेस प्रोवाइड किए जाएंगे. एंड किसान रेल स्कीम जो है उसमें 50% चार्जेस रिड्यूस किए जाएंगे व्हेन द ट्रांसपोर्टेशन इज डन थ्रू रेलवेज. ओके, देन इंटरमिनिस्ट्रियल कमिटी सेटअप to strengthen the capital goods sector. See, the very interesting line has been used here, the capital goods sector. Capital goods sector is nothing but it is just the industrial sector. Okay, it is basically the industrial sector. It is the company, okay, collection of company which basically produces or manufactures goods and distributes it. So ये वही sector है. The government has set up 22 interministerial committee in strengthening the capital goods sector to make this sector globally competitive and to become the manufacturing hub for the world. तो हमें पता है कि हम recently manufacturing hub नहीं हैं. But when we are talking about India, Indian market is not a manufacturing hub right now. So the Indian government is basically taking steps to make India a manufacturing hub. तो इसीलिए जो हमारा आत्मनिर्भर अभियान है वो इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, so that we do not depend on China and Japan for manufacturing. Okay, manufacturing contributes to the 16% to the GDP. Okay, so that is the fact. The committee will look into issues pertaining to capital goods sector including technology development, mother technology development, global value chains, skill training, global standards and custom duties. So इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जो ये सारी चीज़ों को देखेगा. इसकी चेयरमैनशिप कौन हैंडल कर रहा है? द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज. ठीक है, ओके, फाइन. देन this is about production linked incentive scheme approved for 10 more sectors. So PLI, okay, this is very important scheme that will help in creating jobs. So why this would help in creating jobs? Because this scheme is basically for the sectors which are labor intensive. ठीक है, जो labor intensive है, capital intensive जो sectors है वहाँ पे हम ये scheme उसके लिए लेकर आए हैं. This is for those sectors. So as I told you that manufacturing is 16% of GDP. So it needs to increase. है ना, we need to take steps to enhance our manufacturing sector. So PLI scheme for 10 more sectors.
ओके, इट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू 10 मोर सेक्टर्स। इसका मतलब ये है कि कुछ सेक्टर्स हैं जिनको ऑलरेडी पीएलआई स्कीम के अंडर लाया गया है। अब ये पीएलआई स्कीम में होता क्या है, बेसिकली मैं आपको समझाती हूँ। इट इज़ नथिंग बट इट्स जस्ट दैट कि आप अगर कोई भी ऐसा सेक्टर को होल्ड करते हैं जो लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव है, तो गवर्नमेंट आपको एक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा व्हेन योर प्रॉफिट इज अकाउंटेड। ओके, अकाउंटेड मीन्स जो आपका प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट के पास उसका डेटा है, आप कितना प्रॉफिट बना रहे हैं एंड आपको लगातार प्रॉफिट होता जा रहा है। यू आर नॉट गोइंग इन टू लॉस, द एंटरप्राइज इज नॉट गोइंग इन टू लॉस। सो जो ऐसी फर्म्स हैं, ओके, उनकी जिनकी इंक्रीमेंटल सेल हो रही है एवरी ईयर और वो बढ़ती जा रही है कंटिन्यूसली फॉर 5 ईयर्स, तो उनको पीएलआई स्कीम के अंडर बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और बेनिफिट्स का मतलब ये है कि आपको कुछ सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाएंगी थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। So this is going to boost the domestic market basically. Okay, and this also the PLI scheme, this means that foreign countries can also come to India, they can set up their factories here and they can give employment to the people. Okay, so this is the idea behind PLI scheme. So now it has been provided to 10 more sectors. तो इससे पहले जो सेक्टर्स थे उनको ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया। अब जो मेजर सेक्टर्स इनको इंक्लूड कर लिया, जैसे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, ऑटो कॉम्पोनेंट्स एंड ऑटोमोबाइल फॉर एनहांसिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो आप प्रोड्यूस कीजिए इंडिया में, इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट को बढ़ाइए, एक्सपोर्ट कीजिए बाहर। This is the basic funda behind that. Okay, so now we need to know that why PLI is needed. The kind of ramping up of manufacturing that we need requires across the board initiatives, but the government can't spread itself too thin. अब देखिए, इसमें ऐसा है कि जो फर्म्स मैंने आपको बोली थी कि उनका सेल हर साल बढ़ता जा रहा है, तो वो फर्म्स प्राइवेट हैं। प्राइवेट फर्म्स को इसलिए पिक्चर में आना पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट सारी स्पेंडिंग नहीं कर सकती है। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, गवर्नमेंट कैन नॉट इन्वेस्ट ऑल ऑफ इट्स मनी ऑन दीज सेक्टर्स, तो उसके लिए प्राइवेट प्लेयर्स को आना पड़ेगा पिक्चर में। एंड फॉर दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रोवाइड सम लीजेस। ठीक है, उसको थोड़े लीजेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे सो दैट द इन्वेस्टर कुड बी अट्रैक्टेड टू द इंडियन मार्केट। तो इसीलिए ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट फोकस कर रही है। सो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स लाइक गारमेंट्स एंड लेदर, इट वुड रियली बी हेल्पफुल। ठीक है, अगर जो हमारे एक ट्रेड एक्सपर्ट है उन्होंने ये भी बोला है कि अगर जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है जैसे कि हमारे गारमेंट्स एंड लेदर फैक्ट्रीज, अगर इनको भी हम पीएलआई स्कीम के अंडर लाते हैं तो दिस वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द इंडियन मार्केट। सो दैट इज़ अबाउट इट। As part of mission Sagar 2nd, Indian naval ship Airawat entered Port Sudan on 2nd November. So we have discussed this कि जो आपका फर्स्ट सागर मिशन था उसमें क्या किया गया था, मालदीव्स, मॉरिशस, सेचल्स, मदागास्कर एंड कोमोरोस, these were some of the countries where India sent food aid and medicines. ठीक है, बिकॉज दीज कंट्रीज वर अफेक्टेड बाय कोविड-19 एंड दीज आर सम ऑफ द लो इकोनॉमीज। तो वाई इंडिया सेंट ऑल ऑफ इट्स हेल्प टू दीज कंट्रीज, बिकॉज दीज आर इंडियाज मैरीटाइम नेबर्स। ठीक है, ये इंडियन ओशियन रीजन के कंट्रीज हैं, सो इंडिया इज ट्राइंग टू रीच आउट टू दिस कंट्रीज। ओके, सो दैट वॉज द फर्स्ट सागर मिशन। तो उसके ही एक्सटेंशन में एक सागर मिशन सेकेंड स्टार्ट किया गया। सागर इज़ नथिंग बट सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो कौन से रीजन की बात करें, इंडियन ओशियन रीजन की बात की जा रही है यहाँ पे। फाइन, सो दैट इज़ इट। तो सेकेंड जो सागर मिशन है वहाँ पे जैसे कि कुछ कंट्रीज़ है, सूडान, साउथ सूडान, जिबूती और एरित्रिया, ये कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे अंडर सागर सेकेंड ये कंट्रीज़ को हेल्प पहुँचाई गई है इंडिया के द्वारा। सो आई हैव ऑल्सो एडिड मैप फॉर योर इन्फॉर्मेशन दैट वाई दिस कंट्रीज़ आर इम्पॉर्टेंट। आपने जिबूती का काफ़ी नाम सुना होगा, वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के नेवल बेसिस हैं। तो क्यों है जिबूती इतना इम्पॉर्टेंट, आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू। ओके, सो
the basic point is that Djibouti is located at the place from where all the trade, all the export from Indian Ocean goes to the Mediterranean Sea. ठीक है, आप इंडियन ओशन से जितना भी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, चाइना हो, जापान हो, जितनी भी कंट्रीज़ है, मालदीव्स हो, इंडिया हो, जितनी भी कंट्रीज़ है, ये छोटे छोटे जितने भी कंट्रीज़ है वो इंडियन ओशन से मेडिटेरेनियन सी में इसी चैनल के थ्रू पहुंचते हैं. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर जिबूती में किसी ऐसी कंट्री ने कब्जा कर लिया जो ट्रेड को रोक सकती है, दैट इज़ अगेंस्ट ग्लोबल पीस, ठीक है, तो क्या होगा कि ट्रेड रुक जाएगा, जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है वो पूरा हिल जाएगा. सो दिस इज बेसिकली द डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर. ओके, द ट्रेड पॉलिसीज वुड बी डिसरप्टेड. सो दिस जिबूती इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडियन ओशन टू द मेडिटेरेनियन सी. ओके, सो अभी जो हम रिसेंटली बात कर रहे हैं कि सूडान को पहुंचा ये हेल्प, सूडान की कैपिटल खार्तूम एंड एरित्रिया की कैपिटल अजमारा वहाँ पे दी गई हुई है. ओके, सो एरित्रिया, इजिप्ट, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे कि सिविल वॉर्स बहुत होते हैं, उनका जो डोमेस्टिक वॉर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं. ओके, जैसे कि इथियोपिया, सोमालिया, साउथ सूडान, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिविल वॉर्स होते हैं. अभी आपको पता ही है इथियोपिया में रिसेंटली वॉर चल ही रहा है. ओके, आपका जो तिग्रिक रीजन है वहाँ पे. ओके, सो दिस एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट इजिप्ट जो है, इजिप्ट में ही सूज कैनाल है. सूज कैनाल के थ्रू ही आप रेड सी से पहुँच जाते हो डायरेक्टली मेडिटेरेनियन सी. तो इसीलिए ये चैनल इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो दैट्स व्हाट आई जस्ट वांटेड टू कन्वे. ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट द दिस मिशन सागर सेकेंड. ठीक है, तो इंडिया और स्पेन के बीच में एस्ट्रोनॉमी में जितने भी साइंटिफिक और टेक्निकल कोलैबोरेशंस है उनको लेकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया गया. ये छोटी सी बात है, ठीक है. एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, एस्ट्रोनॉमी क्या है बेसिकली? इट इज़ द स्टडी रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट्स एंड द फिनोमेना विच आर गोइंग ऑन अबव अबव आवर हेड. सीधे सीधे बोलूँ तो आसमान के ऊपर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉमी में. सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स हम कुछ भी ले सकते हैं, प्लैनेट्स, मून, स्टार्स, देन गैलेक्सीज, एनीथिंग. सो दिस इज बेसिकली दैट. तो हम मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स को यूज़ करके ऊपर जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं उनको हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं, उनका जो एवोल्यूशन है वो स्टडी करते हैं, उनका ओरिजिन स्टडी करते हैं और उनसे क्या इफ़ेक्ट होगा हमारे इस वर्ल्ड पे, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं. बेसिकली इट इज़ अबाउट दैट. देन ये कुछ छोटी छोटी न्यूज़ है, जैसे कि कैबिनेट अप्रूव साइनिंग ऑफ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम ऑन कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ICTs. ठीक है, तो ये पॉइंट यही है कि ICT जो टेलीकम्युनिकेशंस है, ठीक है, उस फील्ड में आपका UK और इंडिया ने MOU साइन किया है. इंडिया और स्पेन के बीच में किसको लेके साइन किया गया है MOU? एस्ट्रोनॉमी. इंडिया और UK में किसके बीच में साइन हुआ है, किस चीज़ को लेकर? टेलीकम्युनिकेशंस. मिनिस्ट्री ऑफ I&B कंस्टिट्यूट्स कमिटी टू रिव्यू गाइडलाइंस ऑन टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया. Okay, so this is about I&B constitutes information and broadcasting ministry की बात हो रही है. उसने अभी आपको पता है कि कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं जिनके ऊपर टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट जो है उसको लेकर काफ़ी एलिगेशंस लगाए गए थे. तो बेसिकली हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि TRP है क्या. TRP इज टेलीविजन रेटिंग पॉइंट. तो इसका मतलब ये है कि विच प्रोग्राम इज बीइंग व्यूड द मोस्ट बाय द पब्लिक, विच इज, सिंपल भाषा में बोलूँ तो पब्लिक का कौन सा फेवरेट चैनल है. रीज़न कोई भी हो पर TRP तो उस चैनल की बढ़ ही रही है इसी बात से. ठीक है,
तो हु कैलकुलेट्स द TRP देन? ऐसा तो है नहीं कि पब्लिक बताती है जाके लोग वहाँ पे कि हमारा आपका चैनल आप हमको पसंद है, आपका चैनल हमको पसंद है. इट्स नॉट लाइक दैट. सो द वेरी इम्पॉर्टेंट बॉडी इज बार्क. ठीक है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वाला बार्क नहीं. बार्क इज BARC is Broadcast Audience Research Council. Broadcast Audience Research Council. This actually calculates TRP using barometer. Okay, the process is that the households, okay, nearly 45,000 households are provided with barometer. वो बैरोमीटर को उनके घरों पे लगाया जाता है एंड देन दैट बैरोमीटर बेसिकली कलेक्ट्स दैट what channel is being viewed the most. Okay, so this is the idea behind the calculation of TRP. Then cabinet approves rupees 1810 crore investment proposal of 210 megawatt Luhuri stage 1 hydropower project. Luhuri stage 1 hydropower project आपको याद रखना है रिवर सतलज में इसको बनाया गया एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है. रिवर सतलज के ऊपर इसको बनाया गया है. शिमला एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल में है. ठीक है, और ये सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड इसके द्वारा बनाया जा रहा है ऑन बिल्ड ओन ऑपरेट मेंटेन बूम बेसिस. नाम बढ़िया है, बिल्ड ओन ऑपरेट मेंटेन बूम बेसिस विथ एक्टिव सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो आपके अंडर गवर्नमेंट ही ये काम चल रहा है. देन दिस प्रोजेक्ट विल जनरेट 758.20 मिलियन यूनिट्स. ठीक है, तो हाँ ये कुछ पॉइंट्स है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे. पहली चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम हमारे डोमेस्टिक एरिया में. ठीक है, एंड दैट वुड प्रोवाइड ग्रिड स्टेबिलिटी एंड इम्प्रूव द पावर सप्लाई पोजिशन. देन दिस विल ऑल्सो एड वैल्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी टू द ग्रिड. ठीक है, हाइड्रो पावर जो है वो आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी होती है. सो दिस वुड ऑल्सो एड सम अमाउंट ऑफ गुड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी. ओके, दैट वुड नॉट कॉज सो मच ऑफ पोल्यूशन. सो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए पोल्यूशन कहीं भी कम होता है इसका मतलब ये समझ लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस. तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड विल ऑल्सो रिड्यूस in the environment and this will improve the air quality and there would be less air pollution. Then direct and indirect employment will also be provided. हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, अब उसमें लोगों की ज़रूरत है, सारे काम मशीन तो कर नहीं सकती. सो दिस विल ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. दैट मीन्स दैट इट वुड इन्हेंस द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट we are talking about Himachal Pradesh. So the socio-economic development would be there in the Himachal Pradesh and in that part of the state. Himachal Pradesh will benefit with free power worth around rupees 1140 crore during the project life cycle of 40 years. Okay, then free electricity would be provided for the people who are living there, the projected families. ठीक है, जिनको भी इस प्रोजेक्ट की वजह से नुकसान हो रहे हैं, जितनी भी फैमिलीज़ को, उनको 100 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ प्रोवाइड की जाएगी फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स. ठीक है, देन द वर्चुअल समिट बिटवीन इंडिया एंड इटली. हमने 2 समिट अभी पढ़ लिए हैं, 2 हमने MOU पढ़े हैं, अब हम वर्चुअल समिट के बारे में पढ़ रहे हैं जो इटली और इंडिया के बीच हुई है. ये किसके रिगार्डिंग हुई है? दिस इज the rapid growth in India-Italy relationship in recent past was appreciated. ठीक है, on regional and international issues, both sides agreed to coordinate closely at multilateral fora, especially G20. ठीक है, G20 के बारे में आपको पता ही है कि G20 में बेसिकली 19 कंट्रीज होते हैं प्लस 1 EU होता है. ठीक है, तो ये एक ऐसा इंटरनेशनल फोरम है जहाँ पे गवर्नमेंट्स और जो सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर होते हैं वो मीट करते हैं और वो डिस्कस करते हैं कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे बनाए रखें. सो दैट इज G20.
तो इटली जो मैंने आपको G20 प्रेसिडेंसी क्या होता है वो भी बताया था। G20 प्रेसिडेंसी का मतलब ये होता है, अभी यहाँ पे इट इज़ रिटन ओवर देयर दैट 2021 G20 प्रेसिडेंसी वुड बी इन द हैंड्स ऑफ इटली। दैट मीन्स जो मेन मेंबर है, जो हेड करेगा उस कमिटी को, G20 को 2021 में, ठीक है, जो हेड करेगा वो होगा इटली। सो बहुत सिंपल सा फंड है, ठीक है। तो जो भी लीड करेगा वो इटली होगा 2020 में। 2022 में जो भी जिसको भी लीडरशिप मिलेगी वो होगा प्रेसिडेंसी, उसको मिल जाएगी G20 की 2022 में इंडिया को। इसका मतलब ये है कि जितने भी इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं वहाँ पे इंडिया के लोग होंगे। तो ये बहुत सिंपल सा फंड है। टुगेदर इंडिया एंड इटली विल बी पार्ट ऑफ G20 ट्राइका फ्रॉम December 2020. India welcomed Italy's decision to join AISA as soon as the ratification process is completed. AISA क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए इसमें ये है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको इंडिया लीड कर रहा है ये, और इंडिया ने ही इसको बनाया है, इंडिया ही इस प्रोग्राम को अब लीड करेगा। इसमें ये है कि जितने भी सनशाइन कंट्रीज है, ठीक है, जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर सनलाइट आती है, दे विल बी मैनेजिंग द सोलर प्रोडक्शन, ठीक है, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन वो मेंटेन करेंगे और फिर जितने कंट्रीज है उनको सप्लाई करेंगे। सनशाइन कंट्रीज का ये काम है कि आपके पास सनशाइन आ रही है, धूप आ रही है, आप सोलर एनर्जी कलेक्ट कीजिए, सोलर पैनल्स स्टैब्लिश करिए, प्लांट्स लगाइए, एंड आप वो जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस जो हो रही है आप उसको बाकी कंट्रीज़ में भी सप्लाई कीजिए, खुद का डोमेस्टिक मार्केट बढ़ाइए, ओके, एक्सपोर्ट कीजिए, अलॉन्ग विद दैट आप अपनी कंट्री में भी यूज़ कीजिए, एंड सो दैट जो पोल्यूशन है, जो क्लाइमेटिक ठीक है, क्लाइमेट चेंज है, उसको हम अंडर कंट्रोल रख सकें। सो दिस इज़ आईसा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसमें इंडिया ने बाकी कंट्रीज़ को भी इनवाइट किया है, ठीक है, जो इटली है उसको इनवाइट किया है। इटली ने इनफैक्ट डिसाइड कर लिया है कि वो ज्वाइन करेगा आईएसी। रैटिफिकेशन प्रोसेस अभी कंप्लीट हुई है, ओके। सो दिस इज़ आईसा एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दैट इन माइंड. So 15 MOUs in various sectors such as energy, fisheries, shipbuilding, design, etc. were signed coinciding with the summit. Both countries are keen to formally put behind 2002 killing of 2 Indian crew members of fishing boat off the coast of Kerala by Italian Marines. हाँ, तो ये केस आपको पता ही होगा कि अभी ये केस इसमें रिसेंटली ये भी हुआ था कि जो 2012 में इंडियन क्रू मेंबर्स को जो इटालियन मरीन्स थे उन्होंने शूट कर दिया था, ठीक है, उनको मार दिया था व्हेन दे वर पेट्रोलिंग इन द सी, ठीक है। तो उस रीजन में जब वो जो फिशिंग बोट्स पे थे, जो हमारे इंडिया के 2 फिशरमैन, उनको शूट कर दिया था जो इटालियन मरीन्स थे, तो इंडिया ने कैप्चर कर लिया था इटालियन मरीन्स को, अपने पास अरेस्ट करके रख लिया था। एंड देन देयर वर डिस्कशंस, और फिर उसमें जो इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ है वो कुछ लगाया गया, तो उसके अंडर मतलब ऐसा हुआ था कि उनको इटली पहुंचा दिया गया, एक की तबीयत खराब हो गई थी ऐसे, ठीक है। तो उसका बोला है कि हम इसको साइड कर देंगे, वी आर नॉट डिस्कसिंग इट एनी मोर, वील पुट इट बिहाइंड टू एंड now we'll move ahead with the ISA project. Okay, so Italy is currently India's 5th largest trading partner in the European Union. Bilateral trade is worth 9.52 billion euros. Then India ranks 16th as country of origin for Italian imports. ठीक है, तो Italy is famous like the Rome, okay, the capital of Italy is Rome. NTPC Mauda becomes first power plant of NTPC in Maharashtra to send a massive amount of dry fly ash through rail. सिंपल सी चीज़ है, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसने क्या किया है, जो मौडा में, ठीक है, NTPC मौडा जो है उसने क्या किया है, इट हैज़ बिकम द फर्स्ट पावर प्लांट ऑफ NTPC. NTPC के काफ़ी सारी इंडिया में ब्रांचेस है, तो जो मौडा वाला ब्रांच है उसने फ्लाई ऐश जो जनरेट होती है, ठीक है,
तो उसको उन्होंने ट्रांसपोर्ट कर दिया आपका कर्नाटका में, कालबुर्गी कर्नाटका में जो एक प्लेस का नाम है, वहाँ पे माउडा जो एनटीपीसी माउडा है उसने महाराष्ट्र कर्नाटका भेज दिया है। कहाँ भेजा है, ऐसे कैसे फेक तो नहीं दिया, नो। जो फ्लाई ऐश है वो बेसिकली काम आती है आपके सीमेंट बनाने में, सीमेंट बनता है उससे, फ्लाई ऐश सीमेंट बनाने के काम आती है। देन ब्रिक्स, ठीक है, कुछ ब्रिक्स बनते हैं। सो बेसिकली दिस इज बीइंग यूज्ड इन द सिविल इंजीनियरिंग फील्ड। Okay, so this is important that 100% of ash is being utilized for the production of cement and fly ash bricks, construction of, तो civil engineering projects जितने भी हैं तो वहाँ पे ये काम आ रही है। तो रोड एम्बैंकमेंट्स और लाइंग लैंड्स, ठीक है, तो एश डाइक्स ये सारी चीज़ें बन रही हैं। ओके, देन हाँ, या इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन एट वेली, वेली आपका हो गया कर्नाटका में, ठीक है। तो सोलर एनर्जी ड्रिवन मिनिएचर एक छोटी ट्रेन बनाई है जो कि सोलर एनर्जी ड्रिवन है। ये बेसिकली पब्लिक यूज़ के लिए नहीं है, एज आई मीन पब्लिक यूज़ के लिए है, बट इट्स नॉट फॉर बेसिकली द ट्रांसपोर्टेशन पर्पस, ठीक है। इट इज़ ओनली फॉर टूरिज्म के पर्पस से ये बनाई गई है, ठीक है। तो जिससे कि जो सीनिक ब्यूटी है रीजन की वो तिरुवनंतपुरम में, वहाँ पे इसको चलाया गया है एंड दिस इज फुली सोलर पावर्ड। सो जो फर्स्ट रेल है वो केरला में वेली में बनी है, ये आपको याद रखनी है। इससे मुझे एक और चीज़ याद आती है कि फर्स्ट किसान रेल अभी भी, मतलब वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। फर्स्ट रेल वो याद रखनी है आपको कि महाराष्ट्र से बिहार तक चलाई गई थी। किसान रेल में होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा। अगर महाराष्ट्र बिहार तक चलाई है तो जो महाराष्ट्र के फार्मर्स है वो अपने वेजिटेबल्स प्रोडक्ट्स या उनके जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे उस ट्रेन में लोड करके भेज सकते हैं बिहार, ठीक है। अब उनको खुद कैरी करके नहीं जाना है, वो इसके थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट किसान रेल एंड दिस विल इनहेंस द कनेक्टिविटी बिटवीन फार्मर्स and also market and consumers. So this was important point. Vice President launches International Sat Avadhanam event. It is a unique literary festival है, ठीक है। जो सत अवधानम है वो एक लिटरेरी फेस्ट है जहाँ पे आपसे क्या करवाया जाएगा, दिस इज बेसिकली अ कॉम्पिटिशन, दिस इज अ टेस्ट फॉर द दिस इज फॉर द टेस्ट ऑफ लिटरेरी परफॉर्मेंस, ठीक है, लाइक सॉल्विंग ट्रिकी लिटरेरी पोजर्स, इम्प्रूविंग पोम्स एक्सेट्रा। तो वाइस प्रेसिडेंट ने बोला है जो अवधानम है एज लिटरेरी फीट हैज़ ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द तेलुगु लैंग्वेजेस ग्लोरियस ट्रेडिशन। सो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू तेलुगु लैंग्वेज ओनली and it has a historical and unique feature of only a few language should be further promoted, ये आपके वाइस प्रेसिडेंट ने बोला। Avadhanam is literary performance popular from the very ancient days in India. It is originated as Sanskrit literary process and it is revived by poets in Telugu and Kannada in modern times. And this is for the improvisation of poems using specific themes, meters, forms and words. MORTH, what is MORTH? Ministry of Roads and Transport Highways, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इशूज नोटिफिकेशन यूजिंग फास्टैग्स मैंडेटरी फ्रॉम 1 जनवरी 2021। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो व्हाट इज फास्टैग। फास्टैग ये कुछ भी नहीं है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। जो टोल कलेक्ट होते हैं, आपने देखे टोल कलेक्टर्स रहते हैं काफ़ी सारे, जो रोड्स बनी हुई हैं वहाँ पे कहीं पे भी आप जाते हैं तो जो टोल कलेक्शन है ना, दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम इन इंडिया एंड इट इज़ ऑपरेटेड बाय NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। व्हाट इज द फंक्शन? It functions as radio frequency identification technology for making toll payments directly from the prepaid or savings account linked to it or directly toll owner, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, गाड़ी के आगे एक आपका टैग लगा दिया जाएगा, वो टैग खुद से जब आप
टोल सेंटर पे पहुंचेंगे, वहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो टैग पे आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी होगी वो आपके बैंक अकाउंट से उतना ही पैसा काट लेंगे। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करके जो रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी के थ्रू कैप्चर की जाएगी। सो दिस इज फास्टैग। तो आपके फास्टैग मैंडेटरी कर दिया गया है 1 जनवरी 2021 से, और it would be mandatory in old vehicles also, that is MN and category of motor vehicles, 4 wheelers। ठीक है, पुराने जो व्हीकल्स हैं उनमें भी ज़रूरी है। इससे पहले भी एक एक्ट आया था, उसमें ये बोला गया था कि नई व्हीकल्स जो हैं उनमें जो मैन्युफैक्चरर्स है या फिर वो ही फास्टैग्स लगा के देंगे, या फिर जो गाड़ी बेच रहा है आपका जो डीलर है वो फास्टैग लगा के देगा। सो इट हैज़ बीन नोटिफाइड थ्रू अमेंडमेंट्स ऑफ CMVR। व्हाट इज CMVR? CMVR is Central Motor Vehicle Rules। ठीक है, सो 1989 में it has been notified through amendments in that particular act. It has been further mandated that the valid FASTag is mandatory while getting a new third party insurance, wherein the details of FASTag ID shall be captured, okay, as I have told you. Then the capacity building component of PMFME scheme inaugurated. What is PMFME scheme? It has been launched under Atmanirbhar Bharat. It is a centrally sponsored scheme, and क्यों इसको लॉन्च किया गया है? To enhance the competitiveness of existing individuals, micro enterprises in the unorganized segment of food processing industry, to promote formalization of sector, to provide support to farmer producer organizations, SHGs and producers cooperatives along their entire value chain. Vision क्या है? To directly assist the 2 lakh micro food processing units for providing financial, technical and business support for upgradation of existing micro food processing enterprises। ठीक है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस है उनके सपोर्ट में वहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनकी कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ानी है, उसी को लेकर ये स्कीम लॉन्च करी गई है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइजेस अ वेबिनार ऑन, हाँ तो ये कोई वेबिनार है, वेबिनार सीरीज़ है देखो अपना देश, जिसमें कि इंडिया पे अलग अलग लोकेशंस पे जाके वीडियोस शूट करी जा रही हैं। ठीक है, एंड उसको रिलीज़ किया जा रहा है इंटरनेट पर अंडर देखो अपना देश वेबिनार सीरीज। ओके, एनीबडी कैन सी दैट। Minister of Science and Technology inaugurate the circular dome with 360-degree video immersive experience at Gandhi Darshan Rajghat। ठीक है, अब क्या है? HIL Hindustan Insecticides Limited has signed a MOU with Department of Chemicals and Petrochemicals to achieve the revenue target of rupees 451 crore in the financial year 2021। तो HIL क्या है? HIL एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एंटरप्राइज है, ठीक है, जो कि आपकी इंसेक्टिसाइड्स इंडस्ट्रीज है उनको कंट्रोल करता है, उनको वॉच करता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बनाई गई थी जब मलेरिया बहुत ज़्यादा फैला था, तो हमें DDT की ज़रूरत थी। तो DDT जो था वो एक ऐसी इंसेक्टिसाइड है जिससे मच्छर मरता है, तो उस टाइम पे टू कॉम्बैक्ट मलेरिया DDT वॉज रिक्वायर्ड, एंड फॉर दैट फॉर द रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ DDT HIL वॉज इंट्रोड्यूस्ड। केरला ओपन्स न्यू इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स एंड वेजिटेबल। ठीक है, फूलों की घाटी है केरला, गॉड्स ओन कंट्री है केरला, ओके, और उसको फूलों की घाटी भी बोलते हैं। सो वहाँ पे फ्लावर्स और वेजिटेबल्स को जो इंडो डच तरीके से ग्रो किया जाएगा। तो ऐसा होता है कि जब हम किसी भी जगह की 2 कल्टीवेटिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ना, तो वो कल्टीवेटिंग टेक्निक्स के थ्रू जो क्वालिटी है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाती है मटेरियल की। ओके, सो इसीलिए केरला ने इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूज़ किया। ओके, तमिलनाडु, ओके, सो फ्रॉम तमिलनाडु द साइंटिस्ट दे हैव बीन फ्रॉम तमिलनाडु एंड सिलेक्टेड एज टॉप 2% इन द वर्ल्ड। तो आपके VIT
वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 10 फैकल्टी मेंबर्स जिनको टॉप 2% इन द वर्ल्ड साइंटिस्ट है उनमें लिया गया है। असम लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडो इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। ठीक है, तो पहले केरला में, असम में इंडो इजरायली, केरला में इंडो डच हुआ था। Recently, India and GCC Troika have held their annual political dialogue in virtual mode. So GCC is Gulf Cooperation Council, ठीक है, उसका और इंडिया का भी पॉलिटिकल डायलॉग वर्चुअल मोड में किया गया। तो जीसीसी के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हाँ, तो जीसीसी ने क्या बोला उस वर्चुअल समिट में, उसने ये बोला कि जो इंडिया है वो यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बन गया और इस डिसीजन का वो पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। ओके, सो जीसीसी इज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एंड the headquarters is located in Riyadh, Saudi Arabia. It is the political and economic alliance of countries in Arabian Peninsula. It has established in 1981 to foster socio-economic security and cultural cooperation. मेंबर्स कौन कौन से इसके, यूएई है आपका, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, कतर है, कुवैत है। ठीक है, तो उस जो अरेबियन गल्फ की जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सारे मेंबर्स हैं इसके। ओके, तो जीसीसी से आपको एक और चीज़ याद आई होगी कि ओपेक, ठीक है, जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उसमें कौन कौन है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी है, ओमान है और यूएई है। ठीक है, तो ये कॉपरेशन को भी, वो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है सारी। रिसेंटली first India Nordic Baltic conclave has taken place. So the very first point here is, what is Nordic Baltic? So Nordic is basically a Scandinavian word that means northern, and Baltic, what is Baltic? Baltic is Baltic Sea. So यहाँ पे उन दोनों को रिगार्ड किया गया है। तो नॉर्दर्न स्टेट्स जो हमारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, ठीक है, जो यूरोप है उसके नॉर्दर्न स्टेट्स को यहाँ पे कंसीडर किया है, और बाल्टिक है वो कुछ कंट्रीज़ हैं। ओके, तो जॉइंटली होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ऑन क्लीन टेक्नोलॉजीज एंड रिन्यूएबल एनर्जीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स एंड ब्लॉकचेन लेट्रा। ठीक है, तो इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक, तो आप ये समझ जाइए कि इनके बीच में एक कॉन्क्लेव हुआ है जिसमें क्या डिस्कस किया गया है, रिन्यूएबल एनर्जीज को लेकर, क्लीन टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स एंड ब्लॉकचेन लेड ट्रांसफॉर्मेशन। इट इंक्लूड्स कंट्रीज लाइक एस्टोनिया, डेनमार्क, फिनलैंड, लातविया, आयरलैंड, नॉर्वे, लिथुआनिया एंड स्वीडन। ठीक है, तो नॉर्डिक इसमें से क्या क्या हो जाएंगी, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वो तो आएंगे ही इसमें। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आपको पता है ना, डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन। तो बाल्टिक कंट्रीज आप याद रख लीजिए, तो उससे आपको जो नॉर्डिक कंट्रीज है वो अपने आप पता चल जाएंगी। तो बाल्टिक कंट्रीज है एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। ओके, सो यूएन अडॉप्ट्स रेजोल्यूशन स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया। तो यूएन ने, जो इंडिया ने कुछ उसको रेजोल्यूशंस बताए थे यूएन में, अपने प्रमोट किए थे, तो उनको एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, सो दे वर टाइटल्ड एज कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर अंडर द न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, तो जो कन्वेंशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन है, इट हैज़ बीन टेबल्ड बाय इंडिया सिंस 1982। सी, आपको एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये पता होगा कि इंडिया हमेशा से न्यूक्लियर वेपन के यूज़ के अगेंस्ट है। ठीक है, इंडिया की पॉलिसी ही ये है कि अगर किसी ने हम पे न्यूक्लियर अटैक किया तो हम उस पर अटैक करेंगे दोबारा, हम खुद से आगे से अटैक नहीं करेंगे। तो ये इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, तो पहले तो न्यूक्लियर, हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स हैं उनको बनाने का परमिशन ही नहीं था। एंड अटल बिहारी वाजपेयी जब आए थे तो उन्होंने परमिशन दी, और उन्होंने साथ में ये पॉलिसी भी बोली कि ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास न्यूक्लियर है तो हम किसी पर भी अटैक कर रहे हैं। अगर हम पर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स को यूज़ करेंगे। सो इंडिया शांति चाहती है, इंडिया इज़ अ पीस लविंग कंट्री।
to provide a universal and legally binding agreement that would generate the necessary global political will for total elimination of nuclear weapons. तो इंडिया ने पॉलिसी रखी है, यूएन में रखी थी कि हम जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको एक बाइंडिंग एग्रीमेंट के अंडर यूज करें, ठीक है, एंड इंडिया सपोर्ट्स टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो उस चीज़ को अडॉप्ट किया गया है। देन रूपसी एयरपोर्ट रेडी फॉर कॉमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशंस अंडर उड़ान स्कीम। तो उड़ान स्कीम जो है वो क्या है, बेसिकली उड़ान एक ऐसी स्कीम है, ओके, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान, ठीक है, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान इज अ रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट एंड रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, ठीक है। तो ऐसे एरियाज पे एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्ट करना है जहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत कम हो, जैसे कि ये जो रिसेंटली बनाया गया है, असम में बनाया गया है। असम में आपको पता है रूपसी एयरपोर्ट जो बनाया है वो इसीलिए बनाया है अंडर उड़ान स्कीम, क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, ओके। सो इट इज़ फॉर दैट पर्पज ओनली। सो दिस विल लेट द कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया फ्लाई। तो इसके पीछे आइडिया यही है कि जो कॉमन सिटीज़न हैं उनको मौका मिलेगा एयरप्लेन में ट्रैवल करने का, ओके, एंड दिस विल ऑल्सो बूस्ट इंक्लूसिव नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जॉब ग्रोथ एंड एयर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एंड स्टेट्स ऑफ इंडिया, ओके। सो इसमें ऐसा नहीं कि आपको फ्री में ट्रैवल कराएंगे, अब बना दिया तो फ्री में ट्रैवल कराएंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। जहाँ पे भी उड़ान स्कीम के अंडर जो एयर चार्जेस हैं, जो फेयर्स हैं, ठीक है, एयर फेयर्स हैं, वो सब्सिडाइज्ड किए जाएंगे, जो जहाँ पे भी अनकॉम्पिटिटिव होगा, सो दैट द नॉर्मल पर्सन कुड अफोर्ड इट, द यू नो द पीपल हु कुड नॉट जनरली अफोर्ड द this airplane and all, now they can afford airfares under this particular scheme. सो जो एयर फेयर्स हैं उनको कैप कर दिएगा कि बस इतना ही आप चार्ज कर सकते हैं। सो दिस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सिंस 2017, ओके। सो दिस इज अबाउट दैट। नाउ आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द current affairs in the month of November, okay. There are some more events, there are some more affairs that we need to study for the month of November. This is just a part of it, and we will also provide you with the PDF so that you can revise, and I hope you like the series. Thank you so much.